Dear learners, this is Navneet Paul, your science instructor, and in today's video, we are going to start a new chapter that is something resources and the management of natural resources. So let's start with our chapter. The resources that are available in nature. जैसे कि हमें नेम से ही पता चलता है, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलती हैं. फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सनलाइट, soil, minerals, forest, wildlife, and many more are example of natural resources. तो जो natural resources होती हैं, these are of two types, that is renewable natural resources and non-renewable natural resources. So my dear learners, ये जो आपका चैप्टर होने वाला है, इस चैप्टर में आपको बहुत सारे टॉपिक्स नेम से ही क्लियर होने वाले हैं. राइट जैसे कि अभी रीन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट अगर हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज को कुछ इसकी स्प्लिटिंग करते तो क्या बन जाता है हमारे पास, रीन्यूएबल, जिन्हें हम रीन्यू कर सकते हैं, राइट, which can be replenished in a short period of time like air, water, sunlight, forest, etc. And others are non-renewable natural resources, those resources which cannot be replenished in a short time like minerals, like coal, petroleum, natural gas, metals, etc. और अभी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो कोल एंड पेट्रोलियम है ये कैसे बने, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सब की फॉर्मेशन है कैसे हुई, इनके फॉर्मेशन को कितना टाइम लगा, राइट. सो इन्हें अगर हमें रीन्यू करना हो, वो पेट्रोलियम की अभी जो क्वांटिटी है वही है, अगर हम इसे रीन्यू करना चाहें और बनाना चाहें तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन द नेचुरल वे, राइट. सो दीज रिसोर्सेज आर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. बिकॉज क्यों है ये नॉन रीन्यूएबल, बिकॉज दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म्ड, इन्हें बनने में मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं. So the human activities produce a lot of waste material. जो human activities हैं वो बहुत ज़्यादा waste material produce करती हैं जो कि हम environment में ऐसे ही फेंक देते हैं, right? और जो ऐसे ही हम फेंक देते हैं environment में, that causes pollution of natural resources like air, water and soil. So इससे जो है कई प्रकार का pollution होता है. Right, so my dear learners, you are going to find this chapter very easy. So यहाँ पर कुछ नेचर की बहुत ही प्यारी प्यारी सी तस्वीरें लगाई गई हैं, आप इन्हें देख सकते हैं. एंड यू कैन इमेजिन द हाउ ब्यूटीफुल दिस नेचर इज that is being spoiled by the some of the human activities. For management of natural resources, तो हमें natural resources को manage करने की जरूरत ही क्यों है, right? So all the things we use and consumes are obtained from natural resources. हम जितनी भी चीज़ों को use करते हैं, consume करते हैं, वो सब कहाँ से मिलती हैं? From the natural resources. और हमारी जो population है वो बहुत ज़्यादा increase हो रही है. And due to that particular thing, the industrialization and urbanization, the demand of natural resources is increasing. अगर population increase कर रही है, industrialization and urbanization जो increase कर रही है, उसकी वजह से natural resources की demand भी increase कर रही है, but उनकी जो availability है वो तो पहले जितनी है वो तो available ज़्यादा quantity में नहीं है ना, right? Their availability is limited, but their demand is increasing. So that's why we need to manage our resources properly. And the proper management of natural resources consists of judicious use of natural resources. हम कैसे उन्हें properly utilize कर सकते हैं, उसकी management के लिए क्या क्या कर सकते हैं. The first one is judicious use of natural resources and avoiding wastage of natural resources. सबसे पहले तो हमें बहुत wisely natural resources को use करना चाहिए, सिर्फ वहीं पर use करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, और उसका वेस्टेज जितना ज़्यादा हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए.
एंड द सेकेंड वन इज हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, सो दैट कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ हमारे लिए ही, हमारे तक ही सीमित ना रह जाएं, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी इन सब रिसोर्सेज का लाभ उठा पाए, राइट, वो भी इन सबको यूज कर पाए, यूटिलाइज कर पाए. And the third one is the exploitation of natural resources should not be for the benefit of few people. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका जो बेनिफिट है वो सिर्फ 4-5 लोगों को हो रहा हो, जब बहुत कम लोगों को हो रहा हो. इसका जो बेनिफिट है सभी लिविंग बींग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. The next one we have is while extracting and using the natural resources, we should also plan for the safe disposal of waste so that no damage is caused to the environment. जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जब हम उन्हें यूज कर रहे हैं, तभी भी हमें उन्हें कुछ ऐसे प्लान करना चाहिए कि ना हो, जो उनका डिस्पोजल भी हम कर रहे हैं उससे भी एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना हो. ओके, so now we are going to learn about the forest. So forest में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले forest होते क्या हैं? An area which have a lot of biodiversity, जिसमें बहुत ज्यादा biodiversity हो, बहुत ज्यादा पेड़ हो, जिसमें जो trees की variation है वो बहुत ज्यादा हो, right? So what is the importance of forest? First of all, we will be learning about the importance of forest. So forest helps to preserve biodiversity. जो हमारे पास forest है वो help करते हैं biodiversity को preserve करने में. The forests are natural habitat of plants and animals. बहुत सारे plants and animal ऐसे हैं जिनका natural habitat forest होती है. The forests provide timber, wood fuel, medicines, fodder, etc. Forestal balance. The forests help to control climate and rainfall. Climate और rainfall को भी control करने में वो help करते हैं. The forest help to prevent soil erosion and controls flood. Soil erosion means जो हमारे पास soil है उसका जो सबसे ज्यादा we can say best part होता है, जो सबसे ज्यादा utilize करने वाला part होता है, उस part का erode हो जाना, right? That is called as soil erosion. और ये फ्लड्स को भी कंट्रोल करती हैं. Forests help to maintain the oxygen carbon dioxide balance in the nature. Next we have the stakeholders of forest. People who are associated with forest directly or indirectly are. तो स्टेक होल्डर हम किन्हें बोलते हैं? उन लोगों को जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉरेस्ट के साथ में जिनका कुछ एसोसिएशन हो, जो उनके साथ में कुछ बेनिफिशियल, जिनका फॉरेस्ट के साथ में कुछ वी कैन से एक रिलेशन हो, राइट, जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हो, जो फॉरेस्ट के बारे में सोचे. People living in and around the forest depend on the forest for their livelihood. जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, जो फॉरेस्ट के आसपास के इलाके में रहते हैं, they depend on forest for their livelihood. Industrialists who use the raw material from the forest for manufacturing paper, medicine, furniture, etc. are also the stakeholder of forest. इसके बाद में very important, the forest department of government who owns the forest and controls the resources from the forest are also the stakeholders of the forest. Next we have is nature and wildlife organization who want to conserve and preserve the forest. The stakeholders, this is very important point you should mention here, that one question is going to be asked from this particular topic, stakeholders, right? This is very important point from this particular topic and from this particular chapter. So next we have conservation of फोर्सेस. हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं फॉरेस्ट को? बाय एफॉरेस्टेशन. बाय एफॉरेस्टेशन व्हाट वी मीन? प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. देन बाय प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग द डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन जितना हो सकता है उतना कम करें, अगर हो सके तो बिल्कुल ही डिफॉरेस्टेशन ना की जाए. बाय प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेसिंग बाय कैटल. अगर हमारे जो कैटल्स हैं, दीज आर ऑल्सो अ कॉज ऑफ deforestation, or due to lack of forests we can say
By settling up wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserves, etc., undertaking social forestry program like Van Mahotsav, Chipko movement for planting and protecting trees on a large scale. So, my dear students, from this chapter, you are going to ask question something like this: how can you protect the forest, or how can you conserve the forest on an individual basis? On if by your school, आपके स्कूल एज अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल आप क्या मेजर ले सकते हैं जिससे आप जो है फॉरेस्ट को कंजर्व कर पाएं, जो एनवायरनमेंट को कंजर्व कर पाएं. सो ऑल द क्वेश्चन आर गोइंग टू बी आस्क्ड which are from your own general level, right? These questions are not going to be some typical questions, so you all must have knowledge about these topics, right? So नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वाइल्ड लाइफ. तो सबसे पहले जैसे हमने फॉरेस्ट के में फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, तो अभी हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ हेल्प टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने में वाइल्ड लाइफ हेल्प करती है. वाइल्ड लाइफ हेल्प्स टू मेंटेन फूड चेन्स एंड फूड वेब. We get useful product from wildlife like food, medicine, leather, bones, honey, etc. नेक्स्ट वी हैव इज कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे. दी टॉपिक्स आर गोइंग टू बी लाइक द सेम, लाइक हमने फॉरेस्ट में भी पहले ऐसे ही पढ़ा. सबसे पहले हमने उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी है, देन उसकी कंजर्वेशन. तो इसमें भी हम अभी कंजर्वेशन पढ़ने जा रहे हैं. तो कंजर्वेशन के कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक प्रिजर्विंग द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल. जो एनिमल का नेचुरल हैबिटेट है हमें उसे प्रिजर्व करना चाहिए. बैनिंग पॉचिंग ऑफ एनिमल. जो एनिमल्स हैं उनके पॉचिंग है जो उसके ऊपर बैन होनी चाहिए. प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड सेटिंग अप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व. सो दिस टॉपिक इज दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो पॉइंट है ये आप ऑलमोस्ट ईच यू कैन answer each and every question by writing this particular point if you are asked about conservation of any of the topic. Okay, so the very next we have is water. So water we all know is very important for our daily life, and we all need to utilize water in a very wise way so that we can protect as so that we can save as much as water as we can, because without water survival on earth is not possible, right? So let's start with water. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे uses of water. Uses of water में हमारे पास है that water is basic necessity of all living things. जितने भी living organism हैं उनके लिए water एक basic necessity है, right? We use water for our daily needs, for agriculture, for transportation, construction of building, roads, dams, etc. So water is a natural habitat for aquatic animals. जो aquatic animal है उनका natural habitat ही water होता है. Human activities are affected by availability of water and causing pollution of water bodies. बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं जिससे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अफेक्ट होती है और उनसे पोल्यूशन की भी बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है. ओके, Okay, so now we are going to learn about dams. तो डैम क्या होती हैं? सबसे पहले तो डैम्स आर some we can see the dams are constructed for various purposes like for irrigation of crops, electricity की production के लिए. Dams are some structures, some large structures which are built over the rivers especially. So इसकी कुछ advantages हैं. Let's study about the advantages. The first one is irrigation of crops. Irrigation of crop है जो वो बहुत easy हो जाती है with the construction of the dams. The second one is producing electricity. अगर हम electricity के production की बात करें, so a large amount of, or we can say 90% of electricity is produced by the dams itself. So the third one is supplying water to the towns and cities. So dams also help in supplying water to towns and cities, and it also help in control of flood.
So obviously if something has some advantages, it will have disadvantages also. So the very first disadvantage is social problem. तो डैम्स की वजह से हमारे पास बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, like it displaces a large number of people who have to be rehabilitated. तो जब डैम बनते हैं, ऐसा तो है नहीं कि जो डैम है छोटे से एरिया में बन जाएंगे। डैम बनाने के लिए बहुत ज्यादा एरिया चाहिए होता है, और उस एरिया को खाली करने के लिए बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाता है, मीन्स उन्हें अपने घरों से निकाल दिया जाता है। उन्हें नो डाउट उनके जो घर होते हैं, उनका जो एरिया है, उनका जो लैंड है, उन्हें उसके पैसे दिए जाते हैं, बट उन्हें एक जगह से सब सामान लेकर कहीं और जाकर फिर से अपना जो है हैबिटेट स्टार्ट करना पड़ता है, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इट इज एक्सपेंसिव एंड इट यूजेस ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी। तो अभी कोई भी डैम कंस्ट्रक्ट करना हो, तो अगर इसकी कंस्ट्रक्शन ही इतनी ज्यादा है, इसकी बिल्डिंग ही इतनी बड़ी बन रही है, बाय बिल्डिंग वो डजंट मीन कि कोई स्कूल की बिल्डिंग होती है, जैसे हॉस्पिटल की बिल्डिंग, ऐसी कुछ बिल्डिंग बन रही है, नो, बट स्टिल इट इज वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, जिसमें बहुत ज्यादा जो पब्लिक मनी है उसका यूज किया जाता है। And next is the environmental problem. Environmental problem क्या होता है? It causes deforestation and loss of biodiversity. जहां पर भी अभी डैम बन रही हैं, तो वहां का जो भी एरिया, उस एरिया में जो भी चीज आएगी, वो हर एक चीज को क्लियर करना होगा उन्हें, चाहे वो घर हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो कोई बायोडाइवर्सिटी हो, राइट? बायोडाइवर्सिटी ऑब्वियसली इज प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। चाहे कुछ भी हो, जितना एरिया अलॉट कर दिया जाता है डैम बनाने के लिए, वो अपने एरिया को एकदम से क्लियर कर देते हैं। सो नाउ वी हैव वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो वाटर हार्वेस्टिंग इज कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज। वाटर हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास रेन वाटर होता है, हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं एंड उसे स्टोर कर लेते हैं फॉर फ्यूचर यूज। द कॉमन मेथड्स फॉर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कॉमन मेथड हमारे पास क्या होती है? डिगिंग पिट्स, पोन्स एंड लेक्स। जैसे कुछ कुएं बना देते हैं, कुछ पोन्स, लेक, ऐसे कुछ एक स्ट्रक्चर सा बना देते हैं इन द एट द सरफेस ऑफ अर्थ, सो दैट वहां पर जो है हमारा रेन वाटर है स्टोर हो जाए और हम फ्यूचर में उसे यूज कर पाए। Second one is building small earthen dams or concrete check dams. Construction of dikes, construction of reservoirs, or construction of rooftop collecting units in house. This last method is very common and is important also. It is something unique, right, which can be done at a personal level also. तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे घर हैं, like most of the time जो घर की शेप है in the foreign countries is going to be like this, हर्ट शेप के होते हैं, बट nowadays वो क्या कर रहे हैं, वो अपने घर का कुछ ऐसी शेप रखते हैं जिसमें से यहाँ से वो एक पाइप लगाते हैं, एंड फ्रॉम दैट पाइप जो हमारा वाटर है दैट इज कंजर्व्ड इन अंडरग्राउंड टैंक्स, और वहां से वो जो है वाटर को बाद में फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। सो इससे क्या होता है, जो रेन वाटर है उसे वो यूज कर लेते हैं और उसे हार्वेस्टिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा जो है रेन वाटर भी यूटिलाइज हो जाएगा, और जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उन्होंने यूज करना था फ्रॉम द ग्राउंड वाटर, वो भी हमारा सेव रहेगा, राइट? So the next we are going to learn about advantages of underground water. So we have, it does not evaporate easily. जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है वो इवेपोरेट नहीं होता है एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेज ऑफ वाटर। अगर लेक में वाटर हो, पॉन्ड में वाटर हो, या कहीं और भी वाटर हो, तो वो इवेपोरेट हो जाता है, पर जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है वो जल्दी से इवेपोरेट नहीं होता। इट्स स्प्रेड आउट एंड रिचार्ज वेल्स, ये जल्दी से स्प्रेड हो जाता है, रिचार्ज करता है वेल्स को। इट प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स की इरिगेशन के लिए भी मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। It does not get polluted easily, वो easily pollute नहीं होता, and it does not provide breeding ground for mosquitoes and houseflies.
सो आपको पता होगा कि अगर कहीं पर भी वाटर ऐसे खड़ा रहे, इवन इन द लेक्स और पॉन्ड्स, वहां पर जो है बहुत ज्यादा मच्छर और जो हाउस फ्लाइज हैं वो रहने लगती हैं, मतलब वहां पर वो ब्रीड करना स्टार्ट कर देती हैं, विच कैन बी वेरी हार्मफुल ऑल्सो फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल, राइट। सो इसमें क्या है, ग्राउंड वाटर में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। Okay, so the very next we have is this structure which is used especially in case of this rainwater harvesting. तो आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं, you can see here क्या what happened is कि अगर हट शेप में भी हो, वैसे तो क्या है, ये जो शेप है शेप ही चेंज हो रही है, बट इफ इन एनी केस दिस शेप इज नॉट गेटिंग चेंज्ड, अगर जो पुराने घर हैं उनमें भी क्या है, यहाँ पर से आप देख सकते हैं एक ये structure. From this structure, the water is collected into the pipe. With the help of pipe, it is transferred to the we can say the ground, and which helps in recharging the groundwater. Right? We can say that. यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे water को utilize किया जा सकता है, राइट। तो इससे जो है हमारे ग्राउंड वाटर का लेवल भी इंक्रीज होता है, एज वेल एज जो हम हार्वेस्टिंग के लिए इसे यूज कर रहे हैं, तो इससे हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो सेफ भी रहता है, क्योंकि जो वाटर हम हार्वेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करने वाले थे वो अभी हम रेन वाटर से ही कर रहे हैं। Okay, so all these are same, just there are variations just to make you people understand what we are learning here. So the next we have is coal and petroleum. So coal and petroleum are fossil fuels. So coal and petroleum में fossil fuels है which are formed by decomposition of dead plants and animals inside the earth after several millions of years. वो क्या है, मिलियन ईयर्स के बाद जो हमारे पास डेड प्लांट थे और एनिमल थे इनसाइड द अर्थ, उसके डीकम्पोजिशन से हमारे पास बने हैं क्या, कोल एंड पेट्रोलियम। तो बेसिकली क्या है हमारे पास, हियर वी कैन सी द कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड प्लांट्स एंड पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड एनिमल्स, एंड दे आर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। इन्हें हम रीन्यू नहीं कर सकते हैं इतनी जल्दी। Petroleum reserves may last for more than 40 years and coal reserves may last for more than 200 years. Coal and petroleum contain carbon, nitrogen, and sulfur. When they are burnt, they release carbon dioxide and oxides of nitrogen and sulfur. जो कोल एंड पेट्रोलियम है उनमें क्या क्या कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। एंड जब हम उन्हें बर्न करते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। So carbon dioxide is a greenhouse gas which causes global warming. I hope you all are aware of global warming. And oxides of nitrogen and sulfur combines with moisture in the air and produce acid rain. तो जब हम इन्हें बर्न करते हैं तो they releases some of the oxide which are very harmful for our environment, जिससे कि हमारा जो environment है वो pollute हो रहा होता है, right? So outer chapter, let's revise what we have learned till now. So सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, let's change the color of pen so that you can clearly see. Okay. So सबसे पहले हमने नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ा, that the natural resources are of two types. तो जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस होती हैं, these are of two types. The first one is renewable and the other is non-renewable. And non-renewable. ओके, तो हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी होती हैं, विच कैन बी रिप्लेनिश्ड ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विच कैन बी रिप्लेनिश्ड ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती हैं,
which cannot be replenished over a short period of time. ओके, सो इसके बाद हमने पढ़ा 3 R's के बारे में. What we have learned about 3 R's. तो हमारे पास 3 R's कौन से होते हैं? The first one is reduce. जितना ज्यादा हो सके हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज की कंजम्पशन है उसे रिड्यूस करना चाहिए. द सेकेंड वन इज recycle, and the third one is reuse. Okay, इसके बाद में so this was about one of the topics. So इसके बाद में what we have learned is we have learned about the forest. तो we have learned about forest is सबसे पहले तो जो हमारे forest हैं उनके हमारे पास advantages क्या होती हैं, right? What are the advantages of forest? तो क्या फॉरेस्ट के एडवांटेजेस हैं कि इससे हमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं विच आर इकोनॉमिकली बेनिफिशियल फॉर अस, लाइक अ लॉट ऑफ मेडिसिन. मेडिसिन के पर्पस में इसे हम यूज कर सकते हैं. देन वुड इज अवेलेबल, हमें वुड मिलता है वहां से. बहुत सारी स्पाइसेस मिलती हैं. इट इज हैबिटेट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स, राइट? Habitat for plants and animals. Most important, it gives us oxygen, which is very important for human survival. So इसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं इनके स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, राइट? तो इनके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं? जो लोग इनके आसपास रह रहे होते हैं, जो इनके फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, and some of the NGOs which are directly or indirectly related to this particular thing, that is to in the conservation of forest, and some of the people or some of the organizations that want the forest to be conserved. इसके बाद में हमने क्या पढ़ा? We have learned about conservation of forests. ओके, तो इसमें हमारे पास ना एक स्पेशल केस आ जाता है that I would like to discuss with you, that we have Chico movement and hug the trees. This is hug the trees. These are some of the movements which were initiated in the earlier time, जिनका main motive क्या था? ट्रीज को सेव करना, फॉरेस्ट को सेव करना, प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना. तो हग द ट्रीज में क्या हुआ था कि कुछ लोग थे, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो कि ट्रीज को कट करने के लिए आ रहे थे, बट द पीपल हु वर लिविंग देयर दे यूज्ड टू हग द ट्री एंड दे सेड that before cutting these trees, the ones who were trying to cut those trees will have to kill them, राइट? जो लोग ट्रीज को कट करना चाह रहे थे, उन्हें कट करने के लिए जा रहे थे, उनको बोला गया था कि अगर आप ट्रीज कट करना चाहते हो तो ट्रीज को कट करने से पहले आपको हमें मारना होगा. तो इससे जो है वो बहुत सारे ट्रीज को सेव कर दिया गया था. अगर हम इस ट्री कंजर्वेशन की बात करें तो इसमें सुंदरलाल बहुगुणा का नेम बहुत आगे आता है. सुंदरलाल बहुगुणा. So these are the two moments that you need to remember related to this tree conservation, or we can say forest conservation. Next we have learned about water. Water के बारे में it is very important. सबसे पहले तो हम इसके uses के बारे में पढ़ा. Then we have learned of some of the
और डैम्स, हमने डैम्स के बारे में पढ़ा कि डैम्स की जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन होती है वो कैसे होती है। डैम्स के बारे में हमने क्या पढ़ा, इसके एडवांटेजेस एंड इसकी जो है डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मेन नहीं है। अगर हम डैम्स के बारे में बात करें तो इसकी आपको एडवांटेजेस पूछी जा सकती हैं, डिसएडवांटेजेस पूछी जा सकती हैं। इसके साथ हमने वाटर के बारे में और क्या पढ़ा, वी हैव लर्नड अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर हार्वेस्टिंग में इसके कुछ और भी मेथड्स होते हैं दैट यू कैन लर्न। ओके, सो इसकी एक मेन एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें तो वो हमारे पास आ जाती है pools in Himalaya, that is sorry, it is pools in Himachal Pradesh, not in Himalaya, it is in Himachal Pradesh. So these are the special structure which are used by the people living in Himachal Pradesh, जिसमें क्या होता है, the water flowing in the stream was diverted इसमें पुल्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर वाटर को स्टोर किया जाता है, देन इट इज यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस बेसिकली, और इसे हम किसी और पर्पस इसके लिए भी यूज यहाँ पर जो है कर सकते हैं। ओके, सो द वेरी नेक्स्ट वी हैव इज कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में हमने क्या पढ़ा है, वही कि कोल एंड पेट्रोलियम कैसे बने थे और इसके हमें इसको जो है सेव करके रखना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, कैसे कैसे कर सकते हैं। और अगर हम डिस्कस करें इसके क्वेश्चंस के बारे में तो इसके जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू यू दैट आर वेरी जनरल, राइट। वाटर में एक और केस आता है गंगा एक्शन प्लान एंड जमुना एक्शन प्लान, और गंगा जमुना एक्शन प्लान भी हम इसे बोलते हैं। So we should also discuss that particular topic. Okay, तो वाटर का अगर हम स्पेशल केस डिस्कस करें तो here we have गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान में क्या था ना, तो डियर लर्नर्स, क्या क्या होता है कि गंगा एक, गंगा एंड जमुना जो हमारे रिवर्स हैं, ये बहुत एक पवित्र नदियां माना जाता है। बट द थिंग इज कुछ लोग हैं जो इसमें कुछ एशेस डाल देते हैं, या फिर फैक्ट्रीज का डायरेक्ट वाटर, पोल्यूटेड वाटर अगर इस गंगा में, जमुना में, जो किसी भी और रिवर में ऐड कर दिया जाए विदाउट एनी फिल्ट्रेशन, तो उससे क्या होता है, इट कॉजेज पोल्यूशन, पोल्यूशन इन वाटर। एंड एक टाइम ऐसा आया था जब ये पवित्र कहलाई जाने वाली नदियां भी इतनी ज्यादा पोल्यूट हो गई थी कि गवर्नमेंट को उनकी क्लीनिंग के लिए कुछ एक्शन प्लान्स, यू नो, द एक्शन प्लान्स वर स्टार्टेड। तो गंगा एक्शन प्लान क्या था, गंगा एक्शन प्लान वाज इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट, जिसमें गंगा रिवर जो है उसको साफ करने की सारी स्टार्टिंग की गई थी, उसका एक इनिशिएशन लिया गया था, क्योंकि उसमें पोल्यूशन जो है गंगा रिवर का बहुत ज्यादा हो गया था। एंड द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन वर कि जो लोग हैं उसमें कुछ एशेस फेंक देते थे गंगा में, जो जमुना में, या फिर जो फैक्ट्रीज का वाटर है, जो पोल्यूटेड वाटर था, वो बिना किसी फिल्ट्रेशन के, विदाउट एनी रिमूवल ऑफ द हार्मफुल पार्टिकल्स जो है रिवर्स में ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, जिससे जो है रिवर का वाटर भी पोल्यूटेड होने लगा था। एंड एक टाइम था जब ये पवित्र कहलाई जाने वाली नदियां भी बहुत ज्यादा अपवित्र मानी जाने लगी थी, दैट इज कि वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो गई थी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। इसमें से जो क्वेश्चन है वो बहुत ही जनरल होने वाले हैं। लाइक क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू दैट आप एक, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल, राइट? सो हाउ कैन यू
give your efforts in protection of water when you are in school में रहते रहते आप water को कैसे conserve कर सकते हैं, we can say protect, we can say conserve, कैसे conserve कर सकते हैं, या फिर आप स्कूल के स्टूडेंट हो और एज अ स्कूल स्टूडेंट आप environment की सेफ्टी के लिए, environment की कंजर्वेशन के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हो, कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज बताएं जिससे जो हमारे स्टूडेंट हैं हम उनको अवेयर कर सकते हैं टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल, राइट. सो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं दैट आर टोटली गोइंग टू डिपेंड अपॉन योर ओन पर्सनल थिंकिंग. So this chapter is very easy from examination point of view also, and a 3 marks question will be asked from this chapter. So this chapter is very scoring and very easy. Okay, so we'll meet in the next video with a new chapter. So till then, take care. Bye bye.